বিস্তৃত খবৰৰ মাজলৈ আহিছো আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাই গৈছো যে এনসিবিৰ কাৰ্যালয়লৈ ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীয়ে বৰ্তমান ৰাওনা হৈছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তী বৰ্তমান এনসিবিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈছে আৰু এনসিবিৰ কাৰ্যালয়ৰ দুৱাৰ ইতিমধ্যে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হোৱাৰ দৃশ্য সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব পৰা নাই ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীয়ে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাই গৈছো ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তী এনসিবিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈছে। এনসিবিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হোৱাৰ সময়ৰ দৃশ্য আৰু শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীৰ অধিবক্তাই জনাইছে যে যদিহে আজি ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় তাৰ বাবে ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তী বৰ্তমান হাজু, অৰ্থাৎ ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তী বৰ্তমান হাজু হৈ আছে গ্ৰেপ্তাৰৰ বাবে যদিহে আজি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাই গৈছো যে ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তী যেহেতু কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈছে আৰু সুৰক্ষা প্ৰদানো কৰা হৈছে, গতিকে সেই সুৰক্ষাৰ মাজেৰে আগবাঢ়ি গৈছে ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীক আৰু ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তী এনসিবি কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈছে। 12 বজাত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে এনসিবি কাৰ্যালয়ৰ এই মুহূৰ্তৰ এয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গ্ৰিল অৰ্থাৎ দুৱাৰ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু তাৰ পাছতে বৰ্তমান সোধা পোছা অব্যাহত ৰখা হ'ব। এনসিবিৰ হাতত যথেষ্টখিনি ইতিমধ্যে তথ্য আহি পৰিছে, বহু বিস্ফোৰক তথ্য আহি পৰিছে, বিশেষকৈ ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তী ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ লগত জড়িত হোৱাৰ তথ্য ইতিমধ্যে আহি পৰিছে, বহু বিস্ফোৰক খবৰ আৰু হয়তোবা ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীক এই সন্দৰ্ভত বহুখিনি যিহেতু প্ৰমাণ আছে গতিকে সোধা পোছা কৰাৰ বহু প্ৰশ্ন আছে। সেই মুহূৰ্তত হয়তো এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে যে ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহ কিমান দিনৰ পৰা কৰা হৈছিল, এনেধৰণৰ বহু প্ৰশ্ন এতিয়া উত্থাপন হ'ব। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होगी। एनसीबी का दफ्तर यही है, मुंबई का जो दफ्तर है जहां पर एनसीबी दिल्ली की टीम पहुंची हुई है और यहीं पर रिया चक्रवर्ती से वो तमाम सवाल किए जाएंगे जिसके सुराग जो है सौबिक चक्रवर्ती से, सैमुअल मिरांडा से और जो है दीपेश सावंत से मिले हैं। तीनों को गिरफ्तार किया जा चुका है और ऐसे में जिस बेस पर तीनों को गिरफ्तार किया गया है वही बेस अब रिया चक्रवर्ती के केस में भी देखा जाएगा एनसीबी की तरफ से। यानी गिरफ्तारी की जो तलवार है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर रिया चक्रवर्ती पर जो है वो लटक रही है। हालांकि उनके वकील ने कहा है कि रिया गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं, लेकिन साफ तौर पर जिन सवालों का जवाब एनसीबी को जानना है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत को रिया चक्रवर्ती ड्रग्स देती थी और अगर सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे, उनकी तबीयत खराब थी, तो फिर उन्होंने उसे रोका क्यों नहीं। ये दो महत्वपूर्ण सवाल होंगे और महत्वपूर्ण चीज ये कि कब से उस ड्रग कार्टेल के साथ शामिल थी, कब से ये ड्रग्स की सप्लाई चल रही थी, किन किन ड्रग तस्करों के संपर्क में वो थी। ये तमाम जो सवाल हैं वो रिया चक्रवर्ती से होंगे और सौबिक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत ने कहा है कि रिया चक्रवर्ती खुद ड्रग्स लेती थी। यानी साफ तौर पर उनके भाई ने ही उनकी पोल खोल दी है, उनके करीबियों ने उनकी पोल खोल दी है एनसीबी के सामने। और ऐसे में जिस तरह से रिया चक्रवर्ती को आज बुलाया गया है एनसीबी की तरफ से, ये साफ है कि सवाल बहुत कड़े होंगे। रिया चक्रवर्ती के चेहरे पर जो सिकन है वो घर से निकलते ही वक्त देखी जा रही थी और ऐसे में पूरे रास्ते जब वो अपने फोन से बात कर रही थी तो अंदाजा साफ तौर पर था कि वो अपने वकीलों के संपर्क में हैं, लगातार उनसे बात कर रही हैं और उनसे पूछताछ में क्या पूछा जाएगा, कैसे उसे फेस करेंगी, ये बातें हो रही हैं। लेकिन इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण खबर, सबसे बड़ी खबर इस वक्त है कि रिया चक्रवर्ती आखिरकार एनसीबी दफ्तर पहुंच चुकी हैं। थोड़ी ही देर में उनसे पूछताछ की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अर्पिता, बिल्कुल আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাই গৈছো যে এনসিবি কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈছে ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তী আৰু আমি দেখুৱাই গৈছো নিউজ 18ত এক্সক্লুসিভ হে দৃশ্যসমূহ আমি দেখুৱাই গৈছো যে ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তী উপস্থিত হৈছে। ইতিমধ্যে আমি কৈছোৱে যে ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যে গ্ৰেপ্তাৰৰ বাবে ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তী সাজু আছে, অধিবক্তা ইতিমধ্যে জনাইছে। তাৰোপৰি বহু প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ব, এনসিবিৰ হাতত বহু প্ৰশ্ন আছে। সেই প্ৰশ্নৰ ভিতৰত আছে যদিহে ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীয়ে সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ শৰীৰ সুস্থ নহয় তেতিয়াহ'লে ড্ৰাগছ কিয় দিছিল, যদি ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীয়ে জানিছিল যে সুশান্ত সিং ৰাজপুতে ড্ৰাগছ লৈছিল তেতিয়াহ'লে বাধা প্ৰদান কিয় কৰা হোৱা নাছিল। যদিকে ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীয়ে বাৰম্বাৰ তেওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেও জনাইছে বা স্পষ্টভাৱে তেওঁ জনায় যে তেওঁ সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ যিহেতু তেওঁ বন্ধু, গতিকে খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা ক'বলৈ গ'লে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বুলিও তেওঁ বহুবাৰ কৈছে। গতিকে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁ যদি ইমান শুভচিন্তকে আছিল তেতিয়াহ'লে ড্ৰাগছ কিয় দিছিল বা লোৱাত বাধা প্ৰদান কিয় কৰা হোৱা নাছিল, এনেধৰণৰ বহু প্ৰশ্ন হয়তো আহি পৰিব। पूरे आधार, पूरे ग्राउंड नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास मौजूद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ उसको फैसला लेना है कि गिरफ्तार करना है कि नहीं करना। दूसरी जो बात है, सुशांत सिंह राजपूत के मौत में ड्रग्स का जो एंगल है उसको लेकर के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बहुत संजीदा है। वो इसलिए क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने नेटवर्क 18 के साथ इंटरव्यू में कहा था कि वो ड्रग्स नहीं लेती हैं और वो टेस्ट कराने। अब उनको ये बताना पड़ेगा कि जो चैट थी जो तमाम गौरव आर्या से लेकर के तमाम ड्रग पेडलर्स के साथ सामने आई थी,
वो बात क्यों कर रही थी, किस लिए मंगा रही थी? क्या सुशांत सिंह राजपूत को धीमा जहर दिया जा रहा था ड्रग्स के रूप में, जिस तरह की आशंका उनके परिवार ने व्यक्त की है? और इसीलिए देखिए कि पटना में एफआईआर दर्ज कराया उनके पिता ने और उसके बाद सीबीआई की जांच चल रही है। तो दो एंगल पर जांच होगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की। पहली, क्या सुशांत सिंह राजपूत को धीमा जहर ड्रग्स के रूप में दिया जा रहा था और उसके इसमें रिया या उसके आसपास के लोग शामिल थे? और दूसरी, बॉलीवुड में जो ड्रग का इतना बड़ा कार्टेल है वो कैसे चलता है? और जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ये कहता है कि हमको बड़ी मछलियों की तलाश है, यानी अभी ये जो लोग पकड़े गए हैं, हिरासत में लिए गए, गिरफ्तार किए गए, पूछताछ हो रही है, ये छोटे मोहरे हैं, बड़े मोहरे अभी भी फंदे में आने बाकी हैं और उनका खुलासा तभी होगा जब रिया चक्रवर्ती अपना मुंह खोलेगी। तो रिया चक्रवर्ती से कई सवाल और बहुत ही महत्वपूर्ण और कड़े सवाल की फहरिस्त तैयार करके यहाँ पर अफसर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बैठे हुए। ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তী কেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধিব পৰা যাব তাৰ নিউজ 18ৰ হাতত এক সম্ভাৱনাময় যিসমূহ প্ৰশ্ন থাকিব পাৰে তাৰ এখন তালিকা ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু তাৰ ভিতৰত আছে যে হয়তো সুশান্ত সিং ৰাজপুতক তেনেধৰণে তেওঁলোকে ড্ৰাগছ দিছিল নেকি। আৰু ইতিমধ্যে ভাতৃয়ে যিহেতু কৈছে যে ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীয়ে কোৱাৰ বাবেহে ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহৰ সৈতে তেওঁ জড়িত আছিল, অৰ্থাৎ ৰিয়াৰ পৰিয়ালৰ লোকে ৰিয়াৰ যেন এখন মুখা খুলি পেলালে, তেনে এটা কথা ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে। যদি ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তী ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ মুখ্য অভিযুক্ত, তেতিয়াহ'লে আৰু কাক কাক ড্ৰাগছ দিয়া হৈছিল, অৰ্থাৎ বলিউডত ড্ৰাগছৰ যি ৰেকেট, গতিকে সেই কিমান কি শক্তিশালী হ'ব পাৰে, কোন কোন অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে ড্ৰাগছ লৈছিল, এনেধৰণৰ বহু কথা এতিয়া পোহৰলৈ আহিব। কিন্তু এতিয়া সময় হৈছে যে ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীক যিহেতু বৰ্তমান সোধা পোছা চলি আছে, ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীক প্ৰশ্ন কৰা হৈছে, হয়তো লিখিতভাৱে সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগিব ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীয়ে আৰু শেষত তেওঁ হস্তাক্ষৰ লোৱা হ'ব। এনেধৰণে এনচিবিয়ে পৰিকল্পনা কৰিছে আৰু বৰ্তমান এয়া এনচিবি কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰভাগৰ আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীয়ে ইতিমধ্যে নিজৰ অধিবক্তাৰ সৈতে তেওঁ কথা পাতিছে। তেওঁ যিহেতু কৈছে যে তেওঁ নিজৰ গাড়ীৰে এনচিবিৰ কাৰ্যালয়লৈ আহিব, ঠিক তেনেধৰণে নিজৰ গাড়ীৰে তেওঁ এনচিবিৰ কাৰ্যালয়লৈ আহিছে। गिरफ्तारी हो चुकी है, रिया चक्रवर्ती को बुलाया जा चुका है और ऐसे में अब अगला नंबर इंद्रजीत चक्रवर्ती का भी हो सकता है, क्योंकि पूरी चैट अगर देखें तो उसमें साफ तौर पर सोबी के कहता दिख रहा है कि पिताजी को ड्रग्स की जरूरत है, पिताजी को इस ड्रग्स की जरूरत है। खास तौर पर जब वो ड्रग डीलरों के संपर्क में था तभी ये बात कर रहा है और यही वजह है कि एनसीबी पहले रिया चक्रवर्ती, क्योंकि किंगपिन अगर इस पूरे मामले की देखें तो रिया चक्रवर्ती ही है, क्योंकि लगातार वो सोबिक मिरांडा को और मिरांडा उन ड्रग डीलरों को जो एनसीबी ने पहले दिन गिरफ्तारी की थी उनके संपर्क में था, उनसे लगातार ड्रग्स जो है वो खरीद रहा था। और यहाँ तक बासित पिछले 2 साल से रिया चक्रवर्ती के घर पर वो आ रहा था ड्रग्स लेकर, इसकी जानकारी भी एनसीबी को मिली थी और यही सबूत है जिसके आधार पर रिया चक्रवर्ती को बुलाया गया है। और अगली बारी इंद्रजीत चक्रवर्ती की भी हो सकती है, क्योंकि आज जो उम्मीद जताई जा रही है कि जो एनसीबी की टीम है वो रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार भी कर सकती है। केस वही है जिसमें सोबिक, मिरांडा और दीपेश की गिरफ्तारी हुई है और इस केस में अब अगर किंगपिन के सबूत होने के एनसीबी को चांसेस सबूत मिलते हैं रिया के खिलाफ, तो ऐसे में फिर रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया जा सकता है। महत्वपूर्ण चीज यही है, क्योंकि हम लगातार पूरे रास्ते पर आ रहे थे, पूरे रास्ते भर रिया चक्रवर्ती फोन पर बात कर रही थी, उनके चेहरे पर सिकन साफ तौर पर देखने को मिल रही थी, चिंता की लकीरें साफ तौर पर देखने को मिल रही थी। हमने उनसे जब सवाल भी पूछा तो उन्होंने मुड़ के हमारे कैमरे पर देखा भी, लेकिन जवाब नहीं दिया कुछ भी, और जैसे ही कैमरे को देखा उन्होंने मुंह को छिपा लिया। तो कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती मीडिया के कैमरों से अपने आप को बचा रही थी। न्यूज 18 लगातार उनको फॉलो कर रहा था कि किस तरह से वो जो रास्ते भर की उनकी एक्टिविटी है, क्या उनके माथे पर सिकन है। तो कहीं ना कहीं वकील ने जरूर उनके बयान दिया है कि रिया गिरफ्तार होने से डरती नहीं, वो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है, लेकिन रिया के चेहरे पर वो चिंता साफ तौर पर पढ़ी जा सकती है। और कल जिस तरह से इंद्रजीत चक्रवर्ती ने स्टेटमेंट जारी किया था कि जो सोबिक चक्रवर्ती गिरफ्तारी बाद अब उनकी बेटी गिरफ्तारी हो सकती है, उन्हें पता है, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं चक्रवर्ती परिवार मुसीबतों में है और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ तौर पर हैं। और एनसीबी के सवाल बहुत ही कठिन होने वाले हैं, बहुत कड़े सवाल एनसीबी ने तैयार किए हैं, क्योंकि पहली बार सुशांत सिंह राजपूत केस में किसी की गिरफ्तारी अगर की तो एनसीबी ने की, ड्रग्स एंगल में गिरफ्तारी हुई। अब इसी एंगल से जांच आगे बढ़ेगी कि क्या सुशांत सिंह की मौत के पीछे। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি আমাৰ সাংবাদিকৰ হাতত যি শেহতীয়া খবৰ আহি পৰিছে সেই অনুসৰি যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীৰ সমগ্ৰ পৰিয়ালটোৱে আচলতে ড্ৰাগছৰ সৈতে জড়িত, কাৰণ ড্ৰাগছৰ যি সৰবৰাহৰ যিসমূহ তথ্য হাতত আহি পৰিছে, যিসমূহ হোৱাটছআপ যোগে বাৰ্তালাপ কৰা হৈছে, में सीबीआई जांच का एक तरह से विरोध किया था, तब बड़े सवाल उठे थे कि रिया चक्रवर्ती ने शुरुआत में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के तुरंत बाद अमित शाह गृह मंत्री को टैग करके ट्वीट किया था कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और जब जांच होने लगी
जांच के आसार बनने लगे तब उनके ही वकील ने सुप्रीम कोर्ट में इसका विरोध कर दिया और उसके बाद उनके ऊपर यह आरोप लगे कि वो नहीं चाहती हैं कि इसकी स्पष्ट जांच हो, इसकी सही तरीके से जांच हो। और मुझे लगता है कि उनके वकील इस बार ये परसेप्शन नहीं देना चाहते कि वो दोषी हैं, पहले ही मान लिया जाए ताकि वो अग्रिम जमानत के लिए जा रही हैं। तो एक तरह से परसेप्शन की लड़ाई में वो चाहती हैं कि वो पूछताछ हो, जो सवाल है उसका वो जवाब देंगी। पहले से ही अग्रिम जमानत की अर्जी देने का मतलब कहीं ना कहीं मॉरल, नैतिक रूप से ऐसा लगता है कि आप बचने की कोशिश कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि उनके दिमाग में ये बात जरूर है। रही बात पूछताछ की, तो मैं आपको फिर तस्वीरें दिखाता हूँ। ये जो तीसरी मंजिल है, इसी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ का सिलसिला शुरू हो गया है। जैसे ही रिया चक्रवर्ती आई, अफसरों की टीम पहले से तैयार थी, तैनात थी, सवालों की फहरिस्त उनके सामने थी और रिया चक्रवर्ती का इस वक्त सवालों से सामना हो रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जितने भी चैट व्हाट्सएप के मिले हैं और ड्रग्स से संबंधित हैं, उन सब में रिया चक्रवर्ती पार्टिसिपेट कर रही हैं। वो तस्वीरें मंगवा रही हैं, वो पूछ रही हैं, जबकि जब बात करिए तो वो मुकर जाती हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे कौन है, ये सीबीआई पता करेगी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पता करेगी। लेकिन जिस तरह की बातें हर रोज आ रही हैं सामने, खुलासे हो रहे हैं, आप कहती हैं कि ड्रग्स आपने कभी छुआ ही नहीं, लेती ही नहीं है और आपका टेस्ट करा लिया जाए, और व्हाट्सएप चैट में आप जिस संजीदगी के साथ पार्टिसिपेट कर रही हैं, उसका रेट पूछ रही हैं, आप उसको पहुंचाने की बात कर रही हैं। और एक और बात, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जो सौविक से पूछताछ की है, सौविक ने कहा है कि रिया भी ड्रग्स लेती थी। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ड्रग्स लेने तक ही ये पूरा मामला सीमित था या ड्रग्स की सप्लाई आगे भी होती थी। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो किन बड़ी मछलियों की बात कर रहा है, किस आधार पे बात कर रहा है। ये जो ड्रग पैडलर पकड़े गए हैं, क्या इन्होंने किसी नाम का खुलासा किया है? क्या इन्होंने बॉलीवुड या टीवी इंडस्ट्री के किसी बड़े स्टार का नाम लिया है? क्या इन्होंने किसी सप्लाई चेन को बस्ट किया है? क्या इन्होंने कहीं बताया है कि यहाँ पर ड्रग्स या नशीले पदार्थ रखे हुए हैं? क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भी ये पता है कि अगर कोर्ट में इस मामले में मजबूती से पक्ष रखना है तो उनको बरामदगी दिखानी पड़ेगी। अगर बरामदगी नहीं दिखाते तो उतना संजीदा केस, उतना गंभीर केस नहीं बना सकते। गिरफ्तार वो कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं, कोर्ट में पेश कर सकते हैं, रिमांड पे ले सकते हैं, लेकिन दोषी ठहराए जाने के लिए जरूरी है कि उनके पोजीशन में इन अभियुक्तों के पास से नशीले पदार्थ या प्रतिबंधित पदार्थ या ड्रग्स बरामद हो। तो मुझे लगता है कि अब रिया चक्रवर्ती से जो पूछताछ हो रही है, कोशिश ये करेगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कि कुछ सबूत उनके ठोस हाथ लगे। স্বাগতম বিৰতিৰ পাছত আমি প্ৰতি মুহূৰ্তৰ খবৰ জনাই আছো আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে যেহেতু ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তী কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈছে আৰু বৰ্তমান খুধা পোছা অব্যাহত ৰখা হৈছে। ইফালে ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ অপৰাধত দীপে সাৱন্তকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। এনচিবি ৰিমাণ্ডত লোৱা হ'ব 9 ছেপ্টেম্বৰলৈ। পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ এই মুহূৰ্তত আমি আগবঢ়াম, যেহেতু এনচিবি কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আমাৰ সাংবাদিক উপস্থিত আছে। CBI and the NCB investigations in detail, but tell us a little more about the ED investigation so far, because that's another important angle, which is the money laundering angle. আৰু ইতিমধ্যে আমি সবিশেষ জনাই গৈছো আৰু যেহেতু এনচিবি কাৰ্যালয়ৰ তৃতীয় মহলাত বৰ্তমান খুধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীক আৰু যিকোনো সময়ত হয়তো ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তী গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে। প্ৰশ্ন বহুত আছে এনচিবিৰ হাতত, প্ৰমাণ বহুত আছে এনচিবিৰ হাতত আৰু মুখ্য অভিযুক্ত ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তী। পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। कंट्रोल ब्यूरो को बहुत ही महत्वपूर्ण लीड हाथ लग चुकी है। सौविक ने ही अपनी बहन के बारे में यानी रिया चक्रवर्ती के बारे में खुलासा कर दिया है कि वो ड्रग्स कंज्यूम करती थी, जैसा कि वो मना करती थी कि मैं ड्रग्स कभी नहीं लेती थी। तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ ड्रग्स और नारकोटिक्स के मामले तक सिमट के नहीं रह जाए मामला, ये मामला सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ा है। और इसीलिए क्या इसके पहले ड्रग्स की बात बॉलीवुड में नहीं होती थी, पहले जांच नहीं होती थी। ये जो जांच हो रही है महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये पता चले कि क्या ड्रग्स के खेल में बड़े लोग शामिल हैं। बहाना भले सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो, लेकिन ये श्रेय जो है, जो ये जो मामला है, ये पुराना है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी लोगों के साथ व्हाट्सएप चैट आए हैं रिया चक्रवर्ती के साथ, उन सबको अंदर पहले से बुलाया गया है। अब दोनों को आमने सामने बैठाया जाए कि आपने पूछा, आपने बताया। अगर आपका कोई इंटरेस्ट नहीं था तो किसके लिए पूछा, किसके लिए बताया, दाम क्यों पूछ रहे थे आप, तस्वीरें क्यों मंगवा रहे थे आप, बात क्यों कर रहे थे आप,
इन सवालों का जवाब देना मुश्किल होगा। और अगर अकेले अकेले पूछताछ हो चुकी है तो अब आमने सामने बैठाकर कन्फ्रंट कराया जाता है कि आपके कहने का कल मतलब क्या था और आज आप क्यों कर रहे हैं। और आपके सामने रिया चक्रवर्ती भी बैठी है, बताइए कि आपके इस मैसेज का मतलब क्या था, इस कोड वर्ड का मतलब क्या था। अब उसी कोड वर्ड का मतलब सौविक ने कुछ और कल बताया हुआ और रिया अगर आज कुछ और बताती है तो यहीं पे ये लोग फंसते हैं। और इसी तरह से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पूछताछ का ये तरीका होता है, अलग अलग बात होती है, एक ही घटना के बारे में अलग अलग लोगों से बातचीत की जाती है। अगर उनकी राय जुदा होती है, उनका बयान जुदा होता है, तब उनको ग्रिल किया जाता है। तो अभी तो शुरुआती बातचीत हो रही है। ये जो तीसरी मंजिल पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में पूछताछ चल रही है रिया चक्रवर्ती से, वो शुरुआती बातचीत हो रही है कि सौविक के साथ आपने ये चैट कब किया था, आप बासित परिहार को जानती हैं कि नहीं, वो आपके घर आते थे कि नहीं, जैसा कि क्लेम किया जा रहा है 2 साल से। क्या आप बांद्रा के फुटबॉल क्लब के अन्य लोगों को भी जानती हैं? क्या बॉलीवुड में अन्य जगहों पर सप्लाई होती है ड्रग्स? क्या पार्टियों में आप गई थी, वहां पर किसी तरह का आपको इस तरह का कोई शंका हुई? क्या आप ड्रग्स लेती हैं? आप क्या इसके बारे में जानती हैं? प्रश्न बहुत আছে আৰু যেহেতু কোৱাই হৈছে যে 2 বছৰ ধৰি যেহেতু ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহৰ সৈতে আপুনি জড়িত নেকি, আপুনি ড্ৰাগছ ডিল কৰিছিল নেকি, বা বলিউডৰ আৰু কাক ড্ৰাগছ দিয়া হৈছিল, যেহেতু ভাতৃ যেহেতু ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ সৈতে জড়িত, ভাতৃৰ সৈতে আপুনি কিমান দিন এনেধৰণে ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰিছে, সুশান্ত সিং ৰাজপুতক আপুনি ড্ৰাগছ দিছিল নেকি, যদি সুশান্ত সিং ৰাজপুতে ড্ৰাগছ লৈছিল আপুনি সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ যদি শুভাকাংক্ষী মানা কিয় নকৰিলে। সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ মৃত্যুৰ সৈতে এতিয়া বৰ্তমান এটা নতুন, যেহেতু আমি কৈছোৱে যে নতুন মূৰ লৈছে আৰু সেয়া হৈছে ড্ৰাগছ ডিলিং। গতিকে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বহু প্ৰশ্ন আছে, উত্তৰ ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীৰ হাতত আছে আৰু সেই উত্তৰসমূহ হয়তো লিখিতভাৱে লোৱা হ'ব আৰু হস্তাক্ষৰ হয়তো ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীৰ লোৱা হ'ব। ইতিমধ্যে অধিবক্তাই জনাইছে যে ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তী মানসিকভাৱে সাজু গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবৰ বাবে, গ্ৰেপ্তাৰ হ'বৰ বাবে। গতিকে যদিহে ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তী আজি গ্ৰেপ্তাৰ হয় তেতিয়াহ'লে ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তী ক'ত ৰখা হ'ব, কেনেধৰণে খাদ্য দিয়া হ'ব, কেনেধৰণৰ এটা ব্যৱস্থাৰ মাজত ৰখা হ'ব, সেয়াও ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে। গতিকে সময়লৈ অপেক্ষা মাথো। বৰ্তমান তৃতীয় যিহেতু মহলাত সোধা পোছা চলি আছে, জেৰা অব্যাহত আছে, প্ৰশ্ন বহুত আছে এনচিবিৰ হাতত। আৰু শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি যিহেতু ভাতৃ সৌভিক চক্ৰৱৰ্তীয়ে ইতিমধ্যে কৈছে যে ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীয়ে নিজে ড্ৰাগছ সেৱন কৰিছিল। ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীয়ে পূৰ্বতে কৈছিল যে তেওঁ ড্ৰাগছ সেৱন নকৰে, তেওঁক টেষ্ট কৰিব লাগে। কিন্তু শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি সৌভিক চক্ৰৱৰ্তীক যিহেতু সোধা পোছা কৰাৰ সময়তে এই কথা পোহৰলৈ আহিছে, সৌভিক চক্ৰৱৰ্তীয়ে অৰ্থাৎ ভাতৃয়ে ইতিমধ্যে এই কথা মুকলিকৈ কৈছে যে ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীয়ে ড্ৰাগছ লৈছিল, অৰ্থাৎ 2 বছৰ ধৰি ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ সৈতে জড়িত আছিল ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীৰ পৰিয়াল। ভাতৃও আছিল জড়িত, ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীও আছিল। আৰু যেনেধৰণে হোৱাটছআপ যোগে যিখিনি বাৰ্তালাপ আছিল সকলো ভাইৰেল হৈ পৰিছে, তাত বহু কথা আহি পৰিছে, তাত কিছু কোড লেংগুৱেজ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল, কোড ৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল, শব্দ যিহেতু ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। গতিকে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এনচিবিয়ে ইতিমধ্যে যিহেতু গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, যিহেতু সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে, সৌভিকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, দীপেশ সাৱন্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু তাত বহুখিনি কথাই আহি পৰিছে। কোড লেংগুৱেজ এনচিবিয়ে ইতিমধ্যে তাৰ সমস্ত তথ্য এনচিবিৰ হাতত আহি পৰিছে। গতিকে এতিয়া সময়লৈ অপেক্ষা মাথো আৰু কিছু সময় হয়তো যে দীঘলীয়া সোধা পোছাৰ অন্তত গ্ৰেপ্তাৰ হ'বও পাৰে ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তী। এনচিবিৰ বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ সম্বোধি কি কৈছিল আমি আগবঢ়াই ল'ম। We have summoned her. She'll come respecting the summon. सर कब तक आएंगे वो? सर कब तक कितने बजे तक बुलाया? तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समन किया गया। ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যে সময় যেহেতু সময়লৈ অপেক্ষা কৰিবই লাগিব, কাৰণ আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ যে ইয়াৰ লগত হয়তো আৰু বহু লোক জড়িত আছে। এটা শব্দ কোৱা হৈছে এনচিবিৰ তৰফৰ পৰা, বড়ি মছলি। গতিকে তাত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা যাব যে আচলতে এই সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ সৈতে কোন কোন জড়িত থাকিব পাৰে, কোনে কোনে ড্ৰাগছ লয়, আৰু এই কথা আহি পৰাৰ লগে লগে এতিয়া বহু কথাই হয়তো পোহৰলৈ আহিব। গতিকে সময়লৈ মাত্ৰ অপেক্ষা কৰিব লাগিব। কিছু ভিজুৱেলছ আমি দেখুৱাই গৈছোঁ। এটা হৈছে এনচিবি কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হোৱা ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তী, ইফালে দীপেশ সাৱন্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ মুহূৰ্তৰ কিছু দৃশ্য। দীপেশ সাৱন্তৰ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আমি কৈছোৱে যে সুশান্তৰ ঘৰত, সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ ঘৰত বন্ধ কৰা ল'ৰা হিচাপে আছিল দীপেশ। দীপেশৰ বিৰুদ্ধে সমন জাৰি কৰিছে। বৃহস্পতিবাৰে নিশা এনচিবিৰ কাৰ্যালয়লৈ দীপেশক অনা হৈছে। সোধা পোছা কৰাৰ অন্তত বহু কথা এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে, বহু তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। কেঁচু খান্দোতে সাপ ওলোৱাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে। যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য ক্ৰমান্বয়ে অন্য মূৰ লৈছে আৰু ক্ৰমান্বয়ে ন তথ্য এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে। ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তী
সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ মৃত্যুৰ পাছতে ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তী যে এখন নাটক ৰচনা কৰিছিল সেয়াও ইতিমধ্যে প্ৰায় প্ৰমাণিত হৈছে বুলি ক'ব পাৰি ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীয়ে সেই সময়ছোৱাত ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীৰ বহু ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিল তাৰ ভিতৰত ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীয়ে কিছু তেওঁ ইতিমধ্যে তেওঁ কোৱা মতে সেয়া তেওঁ মাথো ফূৰ্তি কৰিহে বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে সেই ভিডিঅ' তেওঁ কৰিছিল কিন্তু সেই ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতো যথেষ্ট প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল যে ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীৰ হয়তো ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তী যথেষ্ট শক্তিশালী বা ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীৰ সৈতে কোনো শক্তিশালী এটা সংযোগ আছে নহ'লে ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তী এনেধৰণৰ যিসমূহ ভিডিঅ' ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈছে তাত বহু কথা ইতিমধ্যে প্ৰমাণিত হৈছে